I guess everyone is privileged at one point. Yeah. There is no one like किसको कभी कुछ मिला ही नहीं है. As a psychologist आपको हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग थोड़ा डेप्थ में सबकी नॉलेज है, राइट? तो अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको अपने में से या ह्यूमन काइंड बोलो खुद में से एक इमोशन एलिमिनेट करना है कि हो ही ना, तो कौन सा होता? So hello and welcome to the second episode of Chaotic Kanan. Today we have with us a psychologist, Khushpal Kaur. So ma'am, who is Khushpal Kaur? Okay, it's a difficult question actually. Right. I am a psychologist. Okay. I am specifically, if I tell you, I'm adolescent psychologist. Okay. And Teenagers वाले बच्चे? Teenagers वाले बच्चे, exactly. So difficult होता है, ठीक है, teenagers को handle करना. Right. Parents से पूछ के देखो, जो parents है, छोटे बच्चे को तुम डांट दोगे, समझा लोगे, and teenagers think that they are the one who are right. So हाँ, it is like के उनकी psychology को understand करना, what they think about themselves, what they think about others, and they think actually that they are the right ones. Okay, so as a adolescent psychologist and as a collective psychologist, तो मैं एक बात सिंपल बता दूं कि हर एक की psyche is different, and एक teenager की psyche is totally different from adult and a child, right? So dealing with these all things, I'm here talking to you. Maybe you are out of your teenage, right? Yeah. Right. Okay. So let's start it. Okay, so first of all, we will be talking about feelings and emotions. Right. The first question will be, what is the difference between feelings and emotions? Okay. Emotions and feelings हम सब समझते हैं कि these are two same things. Right. But हैं different, but kind of they are moving on the same track. Right. अब जैसे emotion हो गया, pain है, तो pain हो रही है मुझे, तो क्या feel हो रहा है आपको? You are feeling hurt. कहीं भी अगर आप physical pain की बात करते हैं, तो it is a feeling. ये इमोशन नहीं है, ठीक है? जो फीलिंग इज कि दैट यू फील. किसी इमोशन को जब आप फील करते हो, दैट इज अ फीलिंग. और इमोशन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन दैट किसी ने केक ले आया आपके बर्थडे पे, यू आर लाइक वाओ नाइस, यू गेट सरप्राइज्ड, इट इज एन इमोशन. बट व्हेन यू फील कि आप केक देख के उसके बाद खुश होते रहते हो, वो एक मेमोरी है आपके माइंड में. इट्स अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, ऑफ अफेक्शन, ऑफ लाइक यू आर फीलिंग गुड. एक हैप्पीनेस है आपके मन में, ठीक है? दैट इज अ फीलिंग. इमोशंस आर रिएक्शंस टू सम स्टिमुलाई और समथिंग, एंड फीलिंग्स दैट जो आपके अंदर तक, जो अंदर से आती है बाहर, दीज आर कॉग्निटिव आफ्टर इमोशंस दैट यू फील. I get it. Right. So, what are there any sort of positive or negative emotions, or it's just us who make them positive or negative? I guess both type of emotions are there. And it depends on us also. I would say I would like to answer it in the both ways. ठीक है, जैसे अब देख लो कि example से बात करते हैं हम कि somebody brought a cake for you, and you are missing your family on your birthday, and वो केक आपको emotional कर दे, family होती तो मजा आता. So kind of it depends on you also कि how you take it. ठीक है, आप उसको रिएक्शन कैसा देते हो, आप उसको फील कैसे करते हो, ठीक है, आप उसको परसीव कैसे करते हो, ठीक है. एंड इमोशंस नेगेटिव भी होते हैं, लाइक फियर इज अ नेगेटिव इमोशन, एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन, राइट? Okay, so why are they negative emotions? I guess fear is also required at certain point. Yeah, it is required. Anger is also required at certain point. So why do we like categorize them as negative ones? Because we give our negative reactions to these emotions. As I told you already, emotion is a reaction. ठीक है, हमारे reactions negative होते हैं हर एक चीज को लेके. किसी ने आपको कुछ बोल दिया, you give them, like you shout at them, ठीक है, आपने उसको गलत मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया आप पे. So we would consider it's a negative reaction. So we consider it a negative emotion. Okay, but that negative reaction or emotion can fit perfectly in this situation, I guess. Yes, exactly. You're right. You need to change your reactions if you want to take your emotions positively. Okay. Right. Okay, so हम थोड़ी emotions को discuss करेंगे. So what is jealousy or envy for you? Okay, it's a very good question. I would say it's of two types. ठीक है, if you are thinking कि अच्छा that person has something, that person scores very good in her subject or in her test or in her exams, I also want to do that. Why I don't have that? Okay. I would say कि ये good healthy jealousy है
when you are seeking for a healthy competition. You are not trying to hurt anyone. Right. You are not trying to like squeeze anyone. उसके Right, emotions को खराब वो कर दो right. कि you are doing it wrong, ये वो and all. ठीक है, and you are taking it in a healthy way. So it Okay. is a good emotion, I would say. Jealousy makes you achieve something that you don't have. Okay. In a good way. That's, I would say, it's a good emotion. So like okay, एक तो होता है कि तुमने किसी पर्सन को एज अ लाइक एक पर्सन के एस्पेक्ट्स को एज अ गोल सेट कर लिया है, दैट्स डिफरेंट. एंड सेकंड थिंग इज जब जेलसी की बात आती है तुम उस पर्सन से खुश नहीं हो. Okay. या तो जहां तक मेरे को लगता है कि अगर मैंने जेलसी को अगर जैसे मैंने डिफाइन किया अपनी लाइफ में, जी. तो द थिंग इज कि हर किसी के अपने ट्रेट्स हैं, हर कोई अपनी फील्ड में अच्छा है. जी. अगर आप मेरे सामने बैठे हो या कोई भी पर्सन है, मैं उससे तब तक जेलस नहीं हो सकती जब तक वो मेरी सेम फील्ड का नहीं है, मेरे सेम ट्रेड का नहीं है, वो मेरे सेम कंपटीशन में नहीं है. राइट. फॉर एग्जांपल आप किसी ओपन माइक की बात करोगे, ठीक है, और आप एक म्यूजिक की बात करोगे, आपने मुझसे गाना अच्छा गाया, आई कांट बी जेलस ऑन दैट, क्योंकि मेरे को पता है ये इनका स्टेज है. जब मेरी बारी आएगी आई विल आउटशाइन ऑन माय एस्पेक्ट. राइट. दैट्स सो ट्रू. एग्जैक्टली. फर्स्ट पार्ट इज दैट. सेकंड पार्ट इज अगर मैं पोएट्री की ही बात करूं कि कोई पोएटेस आई या पोएट आया, उसने मुझसे बेहतर परफॉर्म कर दिया. सो द एंटायर थिंग आई हैव इन माय माइंड इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं किसी चीज में हूं तो मैं अपने लिए उसमें बेस्ट हूं विद माय एक्सपीरियंसेस, विद माय नॉलेज एंड विद माय ट्रेड्स. उस बंदे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, नॉलेज डिफरेंट है, ट्रेड्स डिफरेंट है. राइट. Exactly. मैंने यहाँ से शुरू किया, उसने यहाँ से शुरू किया, मे बी मेरी एज यहाँ पे, उसके एज यहाँ पे है, तो मेरे लिए वहां पे जेलसी खत्म हो जाती है. ट्रू. राइट. कि जो चीज मेरे हाथ में है नहीं, मैं उसको बॉदर भी नहीं करती. राइट. दैट्स गुड. कि तुम्हारी अगर आप बात कर लो, नंबर तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हें नहीं लेके आने, वो अलग चीज है. सो ट्रू. बट अगर तुम इन जनरल बात करो कि कौन किसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, ठीक है यार, अगर उसका एक पॉइंट पे स्ट्रांग रहा है तो जिसको जेलसी करनी होती है, जिसको पीछे होना था, वो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के खुद को कर ही लेता कि इसको यहाँ पे मिल गया होना. So out of your these all things, या आपके एग्जांपल से, I just want to say one thing कि it's your perception. Exactly. How you perceive these things, right? तो That आप is कैसे for me, लेते हो? या क्योंकि जेलसी इज समथिंग कि लोग कहते हैं कि ये तो होती ही होती है. हाँ. और ठीक है, कईयों के लिए पॉजिटिव है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब तक तो नहीं आई है किसी भी चीज में जेलसी. सो दैट इज द पॉइंट. कल को आती है तो मेरे भी यही नोशंस रहेंगे कि या तो वो मेरे सेम ट्रैक पे है जी, अगर डिफरेंट पे है तो मेरे को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. True, अगर मेरे साथ भाग रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड आई जस्ट वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माय सेल्फ ओनली. राइट. योर प्रेजेंट सेल्फ. कि मेरे को पता है कि पास्ट में किस चीजों से मैं जो हूँ, मैं उनसे बनी हूँ. राइट. तो आई जस्ट कांट कंपेयर इट विद anyone. So that's my perception about that. Good. You have a good perception of this thing, right? It's a positive perception of jealousy or envy or anything. Right. So what is anger? Next one is anger. Anger, okay. It's also a reaction. Yeah. That you give. It's an emotion. It's not a feeling. Right. Right. Feeling है when you give a reaction to something. किसी ने वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, आजकल के यूथ में किसी ने गाड़ी हल्की सी लगा दी पार्क करते टाइम, ठीक है, हल्की सी गाड़ी टच हो गई एंड वी जस्ट शाउट एट दैट, स्टार्ट शाउटिंग एट द पर्सन, है ना, और लड़ना शुरू कर दिया. वो आपका रिएक्शन है. यू कुड हैव हैंडल्ड इट इन अ गुड वे, ठीक है ना, पॉजिटिव वे. यार इट्स ओके, समथिंग हैपेंड, मे बी कुछ बड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है, राइट, एंड इट्स अ रिएक्शन एंड वी नीड टू नो ओवर देयर कि अच्छा मेरा यहाँ पे रिएक्शन क्या होना चाहिए. Just if you take a second, exactly, or just take yourself out of the situation, 2 मिनट के लिए बाहर निकालो अपने आप को और देखो कि मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए इस पे. How should I react? Like you should, you are saying कि third person के नजरिए से you should analyze the situation. Maybe not exactly of a third person. Third person in the sense कि वो कुछ feel नहीं कर रहा उस टाइम पे, पर जो actual में एक चीज होनी चाहिए, right? उसको analyze करो. What should I say to the person? क्या ये करने से ये situation easy हो जाएगी? I get it, right? Yeah. So I guess I have the next question. Yeah. तो आपने बात करी कि आप एडोलेसेंस के काउंसलर हो या वैसे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो लाइक आपने कहा कि बच्चों और बड़ों के बीच में आती है जो टीनेजर होती है, राइट? तो उनकी एट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? वाओ, रियली गुड क्वेश्चन. ओके, करंटली अगर हम बात करें तो आजकल के टीनेजर्स जो मेरे पास आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? फैमिली फर्स्ट इज देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स,
कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे मुझे, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है आजकल के फैमिलीज में। अब देखो, आप देख लो, आपके पेरेंट्स में भी बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, एंड चाहे वो कितना भी टाइम निकाल लें, कितना भी, आई टोल्ड यू दिस टीनेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑल एडल्टहुड, ये वो सब कुछ है ना इसमें से। वो प्यूबर्टी भी तब हिट करनी होती है, सब एग्जैक्टली। करना तो होता आपके है। हॉर्मोन्स पीक पे हैं, आपके बॉडी में सारी चेंजेस आ रही हैं, आपके मूड्स एकदम से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योर आइडेंटिटी। ठीक है, आप बोलते हो कि आप लॉजिक ढूंढना शुरू करते हो, चाइल्डहुड से शिफ्ट कर रही है, बिल्कुल ठीक है, शिफ्ट हो रहे हो आप उसमें अडल्टहुड में, तो एक ट्रांजिशन आती है, ट्रांजिशन स्टेज। ओके, तो इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई कि इट्स पेरेंटिंग। पेरेंट्स को उनको थोड़ा अथॉरिटी दे देनी चाहिए बच्चे को, जो दे नहीं पाते। ठीक है, पेरेंट्स के लिए तो हम हमेशा बच्चे हैं, वी आर ऑलवेज देयर किड्स, ऑलवेज देयर किड्स, राइट? तो दे नीड टू लीव देयर, you just would say give them some authority, कि उनको छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, नॉट लाइक घर से निकाल दो लाइक दैट, राइट? तो उनको थोड़ा डिसीजन लेने दो, उनको अपने डिसीजंस लेने दो, और उनको करेक्ट करो। ऐसे नहीं कि तू ले ही नहीं पाएगा डिसीजंस, तेरे से होगा ही नहीं, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो पेरेंट्स को लगता है कि वी आर बेटर, अभी ये बच्चे हैं, और बच्चों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। तो अडोलेसेंट ऐसी फेज है। सेकंड आता है कि इनको इमोशंस हैंडल करना नहीं आता, क्योंकि दे आर ऑन अ वर्ज कि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लड़कियां फिर कर लेते हैं, लड़कों के तो मेरे को लगता है वही जो मारकाट हो रही होती है। एग्जैक्टली, यू वोंट बिलीव देयर इज अ डिफरेंस। लड़कियों की टीनेज स्टार्ट होती है 10.5 years की एज में, और लड़कों की होती है 12.5 years की एज में, तो 2 साल का गैप है। लड़कियां 2 साल पहले मैच्योर होना शुरू हो जानी है। या एग्जैक्टली। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इमोशंस का, कि मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा, मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह ही नहीं है, नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और कोई वैलिडेट नहीं कर रहा मेरे इमोशंस को, और उनको एक्सप्रेस करना भी नहीं आता अपने इमोशंस को, और वो सेफ जगह ढूंढते हैं, सेफ स्पेस ढूंढते हैं, कंफर्टेबल होना चाहते हैं विद समवन, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर आई वुड से सीनियर्स और जूनियर्स, और घर पे सिबलिंग्स के साथ भी, और वो पेरेंट्स के साथ नहीं होना चाहते। एक गैप बनना शुरू हो जाता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में इस एज में, क्योंकि उनको लगता है नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड मी, और अगर वो फ्रेंड्स के साथ कोई बात कोई शेयर कर लें एंड वो फ्रेंड आगे पास ऑन कर दे, तो दे डेवलप ट्रस्ट इश्यूज ओवर हियर। बिल्कुल। ठीक है, तो व्हेन दे गेट हर्ट कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर किसी ने मुझे हर्ट कर दिया है, माय फीलिंग्स गॉट हर्ट और समथिंग, दे स्टार्ट नंबिंग देमसेल्व्स। तो किस में चले जाते हैं? यू बेटर नो, सेल्फ डाउट में भी, या सेल्फ डाउट, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं। हु एम आई, कौन हूँ मैं, हु आर माय फ्रेंड्स, कौन जान मेरा ग्रुप कहाँ है, I don't belong to any group. They want to get belonged. They want to feel belonged, right? So ये problems आ रही हैं इनमें। Third, I told you they are jumping into relationships and all, right? तो they want to get belonged, as I said. Right. थोड़ी सी भी कोई उनको attention देता है, they just start going towards. और दोनों एक ही लेवल पे, या दोनों एक ही लेवल पे हैं, क्योंकि एज मेट्स हैं, पेयर्स हैं, राइट? तो दोनों की डेवलपमेंट हो रही है, दोनों को समझ नहीं आ रही, बट दोनों आर गिविंग ईच अदर व्हाट दे आर सीकिंग, केयर, एंड वो कह लो कि अटेंशन, आई वुड से अटेंशन ही बोलूंगी, आई वुड अटेंशन फिट्स हियर द बेस्ट, राइट? एंड दे आर लाइक सब कुछ मिल रहा है मुझे यहाँ पे, बट अगेन इफ दे गॉट हर्ट, अगर हो जाता है, इफ दे गेट हर्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, तो आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं यहाँ पे, राइट? ओके, तो अगर जैसे कि हमने पेरेंटिंग की बात करी, द थिंग इज पेरेंट्स आर आल्सो इवॉल्विंग ह्यूमंस, राइट? एग्जैक्टली। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की ऐसे बात, उनको ऐसे तो नहीं होता ना कि अच्छा 10 बच्चे का बेंचमार्क है, जब वो 11 को हो जाएगा उसको यही आजादी दे देनी है। उनके लिए तो बच्चा ही रहेगा। एंड द थिंग इज कि पेरेंट्स भी अपने लाइक काम वगैरह में इतने बिजी रहते हैं, राइट? तो वी जस्ट कांट से कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि वो एक एंटायर ह्यूमन बीइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वो दोनों के साथ एक दूसरे को कोप अप करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल। ऊपर से अब उनका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब आपने बात करी जैसे कि वर्किंग पेरेंट्स होने की, वो बहुत एक मेजर इफेक्ट डालता है बच्चे की ग्रोथ पे, आई गेस। कि मैं पर्सनली बात करूं, मेरी मम्मा लाइक होम मेकर थे, तो मेरे को तो अटेंशन वगैरह प्रॉपर मिली हुई है, राइट? एंड हाँ, डिफरेंसेस रहेंगे बिकॉज पेरेंट्स ने सही गलत देखा हुआ है, एंड वो चाहते नहीं कि उनका बच्चा गलत को छू के भी आए। एग्जैक्टली, वेरी प्रोटेक्टिव, राइट? बट इन ऑर्डर टू ग्रो, एंड जब तुम खुद को एक्सपोज करते सोसाइटी में,
तुम्हें कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी फेस ही करनी पड़ती है, राइट? यस यस यस। एंड आई गेस वहां पे पेरेंट्स का रिएक्शन मैटर करता है कि अगर बच्चा उस चीज में गया भी है तो उसको ये कह देना कि नहीं देखो जाना ही नहीं चाहिए था, या ओके कि तुमने इससे क्या सीख लिया। आई गेस इट मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि आप किसी से भी पूछोगे ना तो कहेंगे कि ठीक है पेरेंट्स का उतनी नहीं है, बहुत रेयर होंगे जो आपको कहेंगे कि पेरेंट्स के साथ वो खुल के शेयर कर पाते हैं या कुछ है, अनटिल दे आर एडल्ट्स। Yes. कि जब बच्चा खुद, फिर वो अपने पेरेंट्स को भी बच्चा समझना शुरू कर देता है कि चाहे उस टाइम पे ऐसा था बट दैट द पर्सन जिसको हमने भगवान माना हुआ है वो भी कुछ स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो आई गेस वो अंडरस्टैंडिंग विद टाइम ही बिल्ड होती है। आई हैव अ ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस कि पेरेंट्स भी पहली बार ही पेरेंट्स बने हैं ना, राइट? उन्होंने कोई ट्रेनिंग थोड़ी ले रखी है कहीं और से कि हाँ पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स बनने से पहले ट्रेनिंग लेके आओ या कुछ और। दे हैव बिकम पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब अपने बच्चे को हैंडल कर रहे हैं वो, दे आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और जिस एज में वो उनका बच्चा टीनेजर है, मान लो 15 साल 16 साल का बच्चा है, उनकी तो मिड लाइफ है ना, ठीक है, उनकी क्राइसिस चल रही है। माइट हैव हर्ड अबाउट मिड लाइफ क्राइसिस, ठीक है, उनके अपने ही इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल या कुछ फैमिली या कुछ ऐसे, तो वो मिड लाइफ क्राइसिस में है, बच्चा टीनेज में है, तो लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, राइट? सो इसमें आई हैव वन थिंग, अब एक होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, एक होते हैं सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस। पेरेंट्स आपको देते हैं सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस, ऐसे मत करना, इस रोड पे मत जाना, ठीक है, ध्यान से चलना, गाड़ी आ जाएगी, ऐसे हो जाता है, सिंपल थिंग्स, राइट? तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी से कुछ लेके नहीं खाना, वो सिंपल सी बातें हैं ना, छोटी छोटी बातें। अब हम हैं टीनेजर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, वो चाहते हैं हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लें, हम खुद जाके देखें कि है क्या, इतना रोक रहे हैं, तो वो क्यूरियोसिटी है ना उनमें, डेवलपिंग हार्मोन्स हैं, सब कुछ है, तो दे वांट टू टेक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस। तो जो बहुत समझदार है, इंटेलेक्चुअली समझदार बच्चा जिसको हम बोलेंगे, थोड़ा मैच्योरिटी हिट कर गई है जिसको, ही विल अंडरस्टैंड सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस कि हाँ उसने बताया था तो नहीं करना ऐसे, ठीक है, इसके साथ भी ऐसे हो गया, अब तो मेरे दोस्त ने भी ऐसा कर लिया है, उसको भी कुछ नहीं मिला, तो सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट। तो हम गर्ल्स आर बेसिकली गोइंग फॉर सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस हर बार। हम मान लेते हैं पेरेंट्स की बात, मानते हैं ऑफ कोर्स, और कई लड़कियां, मेजॉरिटी गर्ल्स, दे ऑप्ट फॉर सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस, और लड़के जो होते हैं दे आर लाइक मैंने बोला जैसे कि 2 साल लेट आती है उनमें मैच्योरिटी, तो उनमें थोड़ा हो जाता है क्यूरियोसिटी लेवल ज्यादा, और 2 साल लेट भी तो मैच्योर होते हैं वो। गर्ल्स गेट लाइक मैच्योर 2 years earlier, एंड बॉयज की जो मैच्योरिटी है वो थोड़ा 1-1.5 साल 2 साल लेट ही है इनसे, राइट? तो अभी गवर्नमेंट ने भी तो फाइनल कर दिया है, गर्ल्स गेट मैच्योर्ड बाय 18, बॉयज बाय 21, सो इट्स नॉट बाय 18 और 21, एज नहीं है, कुछ 35 साल के लोग भी आपको मैच्योर नहीं दिखेंगे, राइट? इट्स नॉट द एज दैट डिसाइड्स मैच्योरिटी, इट्स द सेंसेस, हाउ यू परसीव थिंग्स, हाउ यू टेक थिंग्स, राइट? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हो कि सेकंड हैंड मान रहे हो? ओके, एंड जो लोग सेकंड हैंड पे जाते हैं उनपे मेरे को लगता है 2 टाइप्स के होते हैं। पहले जो उसको समझ जाते हैं, एंड दूसरे जिन्होंने अपने बस दिमाग में बाउंड्रीज बनानी होती है आउट ऑफ फियर। जो सेकंड वाली है ना, वो वर्स्ट है मेरे को लगता है, कि तुम एक फियर में, तुम फिर वरना हर एक चीज को ही एक फियर में बांध रहे हो, तुम्हें जैसे ही मौका मिलेगा उस फियर से छूटने का तुम खोल दोगे खुद को। कि अगर तुमने समझी लिया वो बात को, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीजें देखी है, तभी हम कहते हैं कि जैसे कि आपने गर्ल्स की बात की कि घर पे है तो सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस मान रही आउट ऑफ फियर, जैसे ही घर से बाहर निकली तो बिल्कुल ही ओपन अप कर दिया। क्यों? क्योंकि इट वाजंट आउट ऑफ नॉलेज, इट वाज आउट ऑफ फियर। तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक चीज खुद को नहीं पता कि क्यों नहीं करनी, तब तक कर लो, मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है, कि पेरेंट्स को बोल देना चाहिए कि हाँ बच्चे को थोड़ी लीनियंसी दे दे, कि उसको खुद के डिसीजंस खुद लेने दे, धीरे धीरे करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं एज अ पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये गलत है, वहां मत जा, यहाँ मत जा, अपना फोन चेक करवा, अपना ये कर वो कर, तो बच्चे में फियर तो आएगा नेचुरली। इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। अगर बच्चा फियरफुल है अबाउट एनी सिचुएशन, ठीक है, मैं बाहर जाऊंगी ये हो जाएगा, ठीक है, वो एंजाइटी बन गई है उसकी, फोबियाज में कन्वर्ट हो रही है वो चीजें। जनरली बच्चा एंशियस हो रहा है हर चीज को लेके, ऐसा कर दूंगा ये हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा वो हो जाएगा, ही इज ओवर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। Here it's again a part of parenting, I would say, ठीक है, कि उन्होंने ओवर प्रोटेक्टिव होके उनमें फियर्स डाले हैं। तो नेक्स्ट वन इज कि जो यूथ है वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड आजकल कैसे कर रहा है अपने फियर्स को लेके और अपने जो भी वो फील कर रहा है।
जिसमें हमारा आ जाता है अल्कोहल, ड्रग्स एंड वो बिंज ईटिंग जो भी था। ओके सो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब रिएक्शन और रिस्पॉन्स आपने बोला, राइट। रिएक्शन होता है हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया, कुछ भी बोल दिया। एंड रिस्पॉन्स होता है यू took a moment and you thought about it, you analyze the situation, और जो आपको वाइज लगा वो आपने आगे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और यूथ जो है वो दे आर बिलीविंग इन रिएक्शंस दीज डेज, रिस्पॉन्ड कम लोग करते हैं। जो मैच्योर पीपल और जो कह दो सुलझे हुए इंसान सोच के समझ के बोलते हैं, रिएक्शन नहीं देते। अच्छा पानी गिर गया, हो तू पानी गिराता, लाइक दैट, दिस इज बैड। तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें पानी रखना नहीं आता, दैट्स अ रिएक्शन। एंड पानी गिर गया, इट्स ओके, जस्ट क्लीन इट अप, साफ हो जाएगा, दैट्स अ रिस्पॉन्स, राइट। तो यूथ जो है रिएक्शंस की तरफ जा रही है। अब उनको इमोशंस हैंडल करने नहीं आ रहे, दे आर अब एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाऊंगी। पेरेंट्स मिड लाइफ क्राइसिस में है और ये लोग टीनेज में हैं, ठीक है। पेरेंट्स का झगड़ा हो गया, दे हैड अ बैड फाइट एट होम, एंड आप क्या करते हो, आप फोन पकड़ते हो अपना, एयरपॉड्स लगाए अपने और आपने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के लिए स्क्रॉल करा फुल वॉल्यूम पे, सुने ना मुझे उनका कुछ, झगड़ा खत्म हो गया, यू आर फीलिंग हर्ट, ये क्या हो गया, यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट। आपके पेरेंट्स में झगड़ा हुआ, हाउ वुड यू फील अबाउट इट, बैड, इवेंचुअली बैड, राइट। एंड आपने एयरपॉड्स लगाए, यू केप्ट ऑन स्क्रॉलिंग योर फोन, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, फोन तो डेड होगा ना किसी टाइम पे, फोन रखा, एयरपॉड्स निकाले, you started feeling hurt, वो फीलिंग्स वापस आ गई, राइट। जो आप एस्केप कर रहे थे उस चीज से, वो वापस आ गया, यू डोंट वांट टू फील इट। आपने अपनी बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, घर से बाहर निकल गए। व्हाट द यूथ इज डूइंग, इट्स एस्केपिंग, भाग रहे हैं हम, वी आर नॉट रेडी टू फेस द इमोशंस एट ऑल, ठीक है। स्क्रोल कर रहे हैं ऑल द टाइम, नेटफ्लिक्स लगा लिया, ठीक है, और नंब करते रहते हैं। जब छोटे होते हैं क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इतना नहीं हंसते, इतना ऊंची ऊंची मत हंसो, एक्सप्रेस नहीं करने दिया। रो रहे थे, एक और थप्पड़ लगेगा और रोया तो रोक दिया हमें वहीं पे, है ना, नहीं रोना। सो दे डिडंट लेट अस एक्सप्रेस आवर इमोशंस, रोने नहीं दिया, हंसने नहीं दिया खुल के। आजकल के पेरेंट्स दे आर वैलिडेटिंग इट, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 साल 15 साल पहले की बातें। तो अब के जो टीनेजर्स हैं, 15-16 साल के बच्चे, दे हैड बीन थ्रू दीज थिंग्स एंड उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, नंब करना आता है। उन्होंने सीख लिया बचपन से ही, नहीं रोना, नहीं हंसना, राइट। तो एस्केप कर रहे हैं वो, जब भी कोई हर्टफुल फीलिंग्स बाहर आती है वो सप्रेस कर रहे हैं उनको। तो इवेंचुअली क्या होता है, बॉटल अप होती रहती हैं चीजें, बॉटल अप होती रहती हैं। अगर कहीं बर्स्ट आउट हो जाए, जिसको इमोशनल आउटबर्स्ट कह देते हैं हम, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, तो उस टाइम पे क्या होता है, अल्कोहल, ड्रग, बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग जिसको कह दिया, ठीक है, ये चीजों का वो सहारा लेते हैं उससे, ठीक है। एंड दे स्टार्ट नंबिंग देयर फीलिंग्स थ्रू ड्रग्स, मतलब पार्टी कर ली, निकल जाएं। आपने वो सुना होगा ब्रेकअप पार्टी, व्हाट इज ब्रेकअप पार्टी, यू आर हर्ट, राइट, जस्ट एक्सेप्ट इट दैट यू आर हर्ट, लाइक यू एक्सेप्टेड दिस वाज बैड, यू एक्सेप्टेड दैट वाज सैड। हाँ, ये टेम्पररी लाइक वो है, एस्केप है, एग्जैक्टली, टेम्पररी एस्केप, एंड कई बार जरूरी भी है, क्योंकि बट नॉट ऑल द टाइम। स्पेसिफिकली पार्टीज नहीं, पर कुछ भी ऑर्गन किए नहीं, तुम्हें जाके ऐसे बिंज ईटिंग करनी है, अल्कोहल करना है, बट टेम्पररी एस्केप्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, कि तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में कुछ चल रहा है और वो कुछ दिनों तक चलता रहेगा, बिकॉज थिंग्स डू टेक टाइम। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट फॉर 1-2 आवर्स तुम वहां पे अपने दिमाग को शांत कर सको। अब पीपल गो फॉर अल्कोहल एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। कुछ लोग खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मीठा ज्यादा खा रहे हैं, या स्पाइसी ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। एंड सम गो फॉर लाइक मूवीज एंड ऑल, मूवीज में भी वही सब दिख जाता है, फिर अपना याद आ जाता है। तो दैट इज द पॉइंट। So I won't think it's entirely wrong or entirely right. It's partly right. It depends upon the level कि तुम किस level पे जाके वो चीज कर रहे हो. But I think first step would be to validate your emotions, to understand your emotions. Exactly. अगर if you're feeling hurt, just accept it, like cry out. ठीक है, लिख दो उसको, express कर दो, share कर लो. जब आपने validate कर लिया, feel कर लिया अपने emotions को, एक नाम दे दिया कि hurt. आजकल तो हम नाम ही नहीं देते emotions को. We are not naming our emotions. Yeah, what are you feeling? Nothing. It's fine. I'm fine, it's fine. Fine or nothing के बिना, we are not naming our emotions, right? You should name your emotions, right? Understand करो अपने emotions को, समझो कि हूँ क्या मतलब, what I'm feeling right now.
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फील करने के बाद इफ यू आर फीलिंग हर्ट फॉर 3 days 4 days, 2 घंटे के लिए escape कर लिया, दैट्स ओके, दैट्स टोटली हेल्दी एज यू सेड कि अगर आप मूवी देख लो, वॉक पे निकल जाओ, बिल्कुल खुद पे काम करो, एक्सेप्ट करनी है सिचुएशंस को, कंट्रोल करना है इमोशंस को, फाइन, ठीक है, बट उसको रिप्लेस करो हेल्दी चीजों के साथ, नॉट ड्रग्स और अल्कोहल और समथिंग। जस्ट गो टू अ थेरेपिस्ट, टॉक अबाउट इट, लेट इट आउट ऑफ योर माइंड, राइट। एक प्रोफेशनल हेल्प लेना आई वुड से इज अ गुड ऑप्शन ओवर हियर, राइट। इससे पहले हमने पेरेंटिंग की बात करी थी ना, तो दिस थॉट जस्ट क्रॉस माय माइंड कि बहुत से बच्चों का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, इज लुकिंग एट देयर पेरेंट्स व्हाइल फाइटिंग, कि जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो देखना बच्चा कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल जो मेरे को लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में मदर्स नहीं बोलती हैं, तो बच्चे की ना एक सेल्फ एस्टीम होती है कि उसकी मम्मा को कैसे किसी ने बोल दिया, चाहे उनका फादर ही क्यों ना हो, राइट। तो वो चीज ट्रॉमा बन के रह जाती है और काफी टाइम तक रहती है। पर आई गेस कि अगर वो दोनों अगर साथ में हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि उनने तो अपना सेटल कर लिया है, राइट, पर वो बच्चे के दिमाग में एक इम्पैक्ट बन जाता है, प्रिंट। तो आई गेस जस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, क्या मतलब अगर बच्चा इतना समझ लेना कि ठीक है उन दोनों के मिड लाइफ क्राइसिस थे, उस पॉइंट पे उनकी प्रॉब्लम है, उनकी इश्यूज चल रहे थे एंड दे हैव रिजॉल्व्ड इट, आई गेट वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होगा। एग्जैक्टली। तो टीनेजर्स डू कम टू मी विद दीज इश्यूज कि मम्मा पापा के झगड़े हो गए एंड दे आर डिस्टर्बिंग मी, मतलब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। आई कैन नॉट टेल देम और नोबडी कैन टेल देम कि उनके बारे में सोचो मत, their parents they will eventually think about them। वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे, ठीक है। ऐसे हम उनको बोल भी नहीं सकते कि उनको ब्लॉक कर दो, लाइक दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, उनको सुनो मत, नो यू कांट डू दैट, राइट। यू आर ह्यूमंस एट ऑल, है ना, आफ्टर ऑल। एंड पॉइंट ये है कि हाँ, उनको ये समझाना, पेरेंट्स अगर खुद समझाएं कि दिस इज आवर कंसर्न एंड वी रिजॉल्व इट, प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर लिया, नाउ वी आर टुगेदर, लाइक हमने सॉल्व करके हम बैठे हैं आपके सामने, यू जस्ट दे विल गेट इट, आई गेस, है ना। तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट। हम फिर सब कुछ पेरेंट्स पे डाल रहे हैं, जबकि वो भी एक ह्यूमन है। या दे आर ह्यूमंस लिविंग देयर लाइफ, पहली बार ही पेरेंट्स बने हैं, तो पहली बार अपनी लाइफ भी वो लाइक जी रहे हैं। इट्स देयर फॉल्ट और समथिंग, बट दे शुड नहीं है, बट दे आर द वन हु आर मोर कॉन्शियस देन देयर चाइल्ड, बिकॉज़ इन साइकोलॉजी और एवरीवेयर हम किसी भी स्टडी में ये पढ़ते हैं, फैमिली इज द फर्स्ट सोसाइटी ऑफ अ पर्सन, ओके, ठीक है। ये फर्स्ट सोसाइटी होती है हमारी। फर्स्ट कौन आता है? पेरेंट्स आते हैं। फर्स्ट टीचर्स पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड्स पेरेंट्स होते हैं, राइट, ठीक है। फर्स्ट जिसके साथ हम गॉसिप करते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, हर बात आके बताते हैं पेरेंट्स होते हैं। तो आवर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड आवर पेरेंट्स। पेरेंटिंग, फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, पेरेंट्स के साथ बॉन्ड कैसा है, राइट, दीज ऑल थिंग्स मैटर अ लॉट। ये आपकी पर्सनैलिटी शेप करती हैं। तो दीज आर द क्रक्स, आई वुड से, टू शेप योर पर्सनैलिटी। ओके, तो अब जैसे कि आप एडोलेसेंट्स के एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं, राइट, आप स्कूल्स में जा रहे हैं, तो जो आप उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जी, वो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, या ओके आप उनको डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और यू आर लाइक ओपनिंग देम टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग? ओके, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन है, मतलब क्रिएट कर लेते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज सिचुएशन, दो चीजें होती हैं। ओके, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं हम। ओके, अगर कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए तो आई विल इवेंचुअली गिव हिम और हर अ सोल्यूशन। ओके, ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आऊं, अगर मैं लेके आऊं तो आप मुझे सोल्यूशन दोगे, बिल्कुल। तो अब साइकोलॉजिस्ट के पास क्या आता है? प्रॉब्लम आती है समटाइम्स, यस, बट ज्यादातर क्या आता है? सिचुएशंस आती है। ओके, ओके, तो वी जस्ट टेल देम हाउ टू कोप विद इट, वी जस्ट टेल देम कोपिंग स्ट्रेटजीज, कोपिंग स्किल्स, किसके साथ कोप कैसे करना है। ओके, प्रॉब्लम्स कम आती हैं, सिचुएशंस ज्यादा आती हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, ठीक है। मैं आई एम स्टक बिटवीन टू पीपल, इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में नहीं बुला रहे, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन स्कूल में होती है। अच्छा, ऐसा सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन थोड़ी है। यू नीड टू टैकल इट, यू नीड टू डील विद इट, यू नीड टू टॉक अबाउट इट। तो दिस इज व्हाट साइकोलॉजी इज अबाउट, दिस इज व्हाट काउंसलिंग इज अबाउट, राइट। तो प्रॉब्लम्स हैं, उसके सोल्यूशंस हैं। तो अगर उसको तो गूगल भी कर लेते हैं लोग। अच्छा, एंजाइटी इज अ डिजीज, डिसऑर्डर, आजकल लोग गूगल करके खुद को ठीक कर रहे हैं, बट आई वुड से एक प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना इज इम्पोर्टेंट। चैट जीपीटी काफी अच्छे जवाब देता है, मैंने खुद देखा हुआ है। चैट जीपीटी विल टेल यू। आई वाज सॉरी, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम इससे, कोई नहीं। तो आई वाज जस्ट
talking to ChatGPT, and I said, "What my head is aching," and he answered me, "You might have a tumor." Okay. So I said, ChatGPT or Google is not your doctor. Don't go to Google or ChatGPT for your answers or something. Right. Go to a professional. But But it's a matter of your health. या अगर आप बट साइकोलॉजिकल कुछ भी पूछोगे ना जी, तो मुझे लगता है कि एक्यूरेट आंसर्स मिल जाते हैं, नॉट ऐसे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो पर्सन नहीं है, उसे तुम्हारी सारी सिचुएशन नहीं पता, एग्जैक्टली, उसे तुम्हारे इंप्रेशंस नहीं पता, एक्सप्रेशंस नहीं पता, तुमने उसको जितना बताया ना, आई गेस उस हिसाब से परफेक्टली आंसर्स प्रोवाइड कर देता है, बट अप टू सम एक्सटेंट, एग्जैक्टली। वो फिर वही आ जाता है, दे आर नॉट ह्यूमंस, ठीक है, दे आर नॉट ह्यूमंस। ChatGPT इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट नॉट रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस तो ह्यूमंस है ना, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स हैं, जो आपका पेरेंट समझ पाएगा आपकी बात, वो एक रोबोट कैसे समझ लेगा? एग्जैक्टली, राइट। पेरेंट्स वाला अफेक्शन एंड ऑल, ठीक है। योर ChatGPT या कुछ और जो भी आपका AI है, आपसे पूछ लेगा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, यू बी लाइक, अच्छा किसी ने पूछा, समबडी आस्क्ड मी समथिंग, ठीक है, और यू फेल्ट कि हाँ किसी ने पूछ लिया है, इतना ही काफी है। तो वो कोई और भी हो सकता है, इट माइट बी अ ह्यूमन आल्सो। तो बेटर होगा कि आप किसी ह्यूमन से बात करें, ठीक है। वी आर फाइंडिंग सब्स्टिट्यूट्स टू टॉक। अभी हमारे पास लोग नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, बहुत सारे, आप यूर हॉस्टलर है ना, कि आप दूर रहते हो, कुछ भी है, समटाइम्स यू हाइड सम थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना, कि यू आर फीलिंग यू हैड अ बैड डे और समथिंग, उनको कॉल करते हो, बताते हो, नो इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि वो बुरा ना मान जाए। जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, कि उनकी फीलिंग्स को समझना। विल योर ChatGPT डू दैट? नो, दे विल नॉट, ठीक है। तो वो ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो हाँ, if you are feeling good, that's good. It's a different thing. If you are not feeling up to the mark while talking to anyone, so go to a professional, go to your best friend, go to the most trusted person, ठीक है, उसके पास जाओ और बात करो, you will start feeling better. Okay, right. Yes. अब अगर हम बात करें इमोशंस की and how to let them out. Okay, first thing is that, and second thing is the reaction and the response. Right. ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्शन और रिस्पॉन्स की, तो फॉर एग्जाम्पल जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स होता है वो बेस्ड अपॉन होता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वेरी राइट एक्सपीरियंसेस से, बट इट ऑल्सो कम्स विद द पर्सनैलिटी ट्रेट। Exactly. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपने पेरेंट्स की, दैट दे हैड अ हेक्टिक शेड्यूल, ओके, तो हमने कहीं भी जाना, फंक्शंस वगैरह पे जाना या पार्टीज वगैरह में जाना, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, दे वर ऑल्सो लाइक, दे वर ऑलवेज लाइक, इतना काम था, इतना हो गया, अब चलते हैं, राइट। वो हमेशा से रहा है। अब उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, मेरे को जाके एक्सप्लोर करना था और जगह को, मेरे को सब कुछ देख के आना था, सोशलाइज भी करना था। नहीं, सोशलाइज का इतना नहीं था, बट टू लुक एट द अदर थिंग्स, कि अदर स्टफ जो चल रहा है। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जितना उन्होंने मेरे को करा था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेक्टिक शेड्यूल, दे डिडंट इवन रियलाइज इट कि क्या हो रहा है। अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसे बन गई, मैं कहीं पे भी हूं ना, मेरा जहाँ पे नहीं भी काम है ना, उसके आसपास कुछ चल रहा है, मैंने वो भी चीज देख के आनी है, जस्ट आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी, एंड वो थोड़ी ज्यादा है बाकी लोगों से, एंड इट वाज बिकॉज क्योंकि तब मेरे को रोका गया था। अब इसका सेकंड एस्पेक्ट ये भी हो सकता था कि मैं वैसे ही रहती और वैसे ही आज भी वैसे ही रिएक्ट कर रही थी कि इतना काम है, इतना करके आ जाओ। तो आई गेस इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, हाउ दैट पर्सन रिएक्ट, क्योंकि चाहे वो उनका बच्चा, उसकी अपनी भी पर्सनैलिटी है। तुम्हें नहीं पता कौन सी चीज अब दब रही है तो कल को भी वो कम हो जाएगी या उभर के आएगी। दैट इज द पॉइंट। एंड सेम गोज फॉर द फीलिंग्स, कि इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब आते फिर उस पे कि रिएक्शंस डिफरेंट है, तो फीलिंग्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ चीजों को। तो ना मैं लाइक ऑटो में ऑफ कोर्स यहाँ आ रही थी, एक तो मैं कट करूंगी, मैं ऑटो में नहीं बोलूंगी, मैं कैब में यहाँ पे आ रही थी। तो वो अपनी चलती ना टेम्पो वगैरह, उसमें ना बॉटल्स पड़ी हुई थी, सबके अंदर पानी था। तो ऑफ कोर्स वो एक पॉइंट पे इधर उधर जा रहा है, राइट, ऑसिलेट कर रहा है। तो जिन बॉटल्स की शेप सेम थी ना, उनके अंदर पानी एक लय में हो रहा था। जिनकी शेप डिफरेंट है उनमें डिफरेंट जा रहा था, चाहे सिचुएशंस उनकी बिल्कुल सेम थी। सो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड जैसे सोसाइटी आजकल बोलती रहती है कि अच्छा ये हाइप कर रहा है इस चीज को, या ओवर एक्सप्रेस कर रहे हो आप अंडर एक्सप्रेस कर रहे हो इस चीज को। आई गेस अंडर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ जेस्चर ऑफ पर्सनैलिटी ओनली। Yeah, it's
all up to a person, Right. how he perceives things, how he feels about some particular thing or not, है ना. अब जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अब मेरे पास अगर 10 पेशेंट्स आए हैं डिप्रेशन के, उनकी बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, उनकी फीलिंग्स डिफरेंट हैं, चाहे उनका डायग्नोसिस डिप्रेशन ही है, क्या उनके कॉजेज डिफरेंट होंगे, तो उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा. एज यू सेड कि शेप अलग है पर्सनालिटी की, तो उसका ऑसिलेशन भी डिफरेंट था, ठीक है, उसका रिएक्शन डिफरेंट था सेम चीज को लेके. अब 5 अगर 10 पेशेंट्स हैं मेरे पास डिप्रेशन के, तो वो 10 डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, तो मैं उन पे एक ही ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगा सकती. ऑफ कोर्स, ठीक है. 10 पर्सनालिटीज आर डिफरेंट, ठीक है, उनका परसेप्शन डिफरेंट है, उनके कॉजेज डिफरेंट हैं, उनका फैमिली एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, एज लेवल्स डिफरेंट हैं, फिजिकल बॉडी तो छोड़ ही दो, है ना, एक माइंड की बात कर रहे हैं अगर हम, तो पर्सनालिटीज आर टोटली डिफरेंट. कोई 2 ह्यूमन बीइंग सेम नहीं है, एवरीबडी इज यूनिक. तो उनका ट्रीटमेंट प्लान भी हमारा डिफरेंट ही चलता है. 10 डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स हमने उनके पर्सनालिटी के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं प्लान्स. यस, it is the personality of a person, not the personality of the parents that we carry. Okay, and अब बात आती है कि इमोशंस को तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा इमोशन इस लेवल पे है और वैलिड है. जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉइंट पे तो एंगर भी वैलिड होता है, राइट. मेरे को लगता है कि जब तक वो चीज खुद को हार्म ना कर रही हो, इट्स ओके टू लेट इट आउट. एंड अदर्स आल्सो. अगर उसने कुछ करा है, उस पर गुस्सा है, करनी चाहिए उसको. आउट ऑफ इमोशंस अनइंटेंशनली कोई हर्ट हो जाए, मेरे को लगता है वहां पे दिक्कत है. अगर इंटेंशनली हर्ट हो तो वहां पे दिक्कत नहीं, वो तो फिर डिपेंड्स कि मैं कैसी पर्सन हूँ. एग्जैक्टली, राइट. वो मेरे को लगता है कि सबसे जरूरी है अपने लिए सही होना. ओके, कि सामने वाले को रियलाइज करवाओ कि they are exactly in a healthy way, I would say. Yeah, realization, not physically hurting them or doing anything like that. Rage, जिसको कहते हैं हम. Anger is different, rage is different. वो हम rage की बात कर रहे हैं. Rage is like physical fights or something, और फोन तोड़ दिया, ये कर दिया, अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, right? I was talking about rage. Okay, you were talking about rage, exactly. So यहाँ पे I would be saying कि you must know how to make the other person realize of their mistakes. Realization is very important over here, and you must pick a healthy route for that, right? Of course. Yeah, always. Always, all the time. Okay, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे कि जो आपको थोड़ी प्रैक्टिसेस बताऊं कि कोई कोप अप अपनी लाइफ में ले आए फॉर अ बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ. साइकोलॉजिकल हेल्थ, जैसे कि जर्नलिंग की हम बात करते हैं, राइट. फर्स्ट पॉइंट यही होता है हमारा. जैसे अगर हमने हमारा पूरा एपिसोड जो था इमोशंस पे था, राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट इमोशंस. तो वन मस्ट स्टार्ट देयर डे बाय आस्किंग वन क्वेश्चन, हाउ एम आई फीलिंग टुडे. नेम योर इमोशंस. ओके, ठीक है. फीलिंग्स क्या हैं आपकी, आज के इमोशंस क्या हैं. इफ यू फीलिंग लो, हाउ कैन आई बूस्ट माई सेल्फ. ओके, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है. सब कभी कभी होता है ना कि जिम जाने का मन नहीं होता, वॉक करने का मन नहीं होता, बट एक गाना सुन लेना, वो दैट हिट्स योर माइंड, मोटिवेट्स यू, राइट. हाँ, हर मैदान फतेह और समथिंग, कोई भी हो, राइट. एंड यू सडनली गेट्स एक्साइटेड, हाँ मैंने करना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, है ना. वो एक मूड एलिवेट हो जाता है आपका. इट कैन बी अ सॉन्ग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर ओन वर्ड्स, जिसको एफर्मेशन कहते हैं हम, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, हाउ एम आई फीलिंग टुडे. If you're feeling low, you're feeling bad, you must think, how can I elevate my mood? How can I fix this thing? At the end of the day, you must write it, how was my day? Okay. ये 2 चीजें हर पर्सन को करनी चाहिए, I would say, in their journaling. Okay, how was my day and how my day has started. How am I feeling at the start of my day? So I'm asking you a question. How are you feeling today? Like before this session, I was feeling okay. Now it's far better. That's good. That's really good. And I guess after this conversation, मेरी अपनी थोड़ी सी जो thought barriers हैं, जो मेरे को पता भी नहीं था कि थे, वो हमने एड्रेस किया एंड वो हमने इसी पॉइंट पे खत्म भी करे, I guess. That's so beautiful. Right. That's good. And heading to the ending of this session, मैं आपको like एक नॉर्मल जो मेरा क्वेश्चन हर साइकोलॉजिस्ट से रहता है कि हर साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि वो अपने ट्रीटमेंट से एक पर्सन को, बिगड़े से बिगड़े इंसान को सुधार सकते हैं. हर साइकोलॉजिस्ट को लगता है. ओके, राइट. तो ये कितनी हद तक है कि साइकोलॉजी से, किसी को थेरेपी देने से, मेडिकेशन से और थॉट प्रोसेस चेंज करने से जी किसी इंसान को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
Okay, it's not about changing the person और उसकी personality. It is about, as I told you, problem और situation वाली बात. हमारे पास लोग लेके आते हैं situations and problems. Okay. We are teaching them or re-educating them, जिसको re-education कह देते हैं हम, ठीक है? Psychology is re-educating a person, ठीक है? We are re-educating them to cope with a particular situation or many situations or any situation, ठीक है? उनके thought processes को, उनके belief systems को change करके, ठीक है? हम उनको सिखाते हैं basically कि इसके साथ cope कैसे करना है. अगर एक person depressed है, depression is all about the past. They are stuck somewhere and all, and anxiety is all about the future. Yeah. We are never in the present. तो हम उनको present में रहना सिखाते हैं. The here and now, ठीक है? And the current moment, ठीक है? बाहर birds हैं, उसको enjoy करो. You're sitting over here enjoying your coffee, but thoughts कहीं और हैं. कॉफी लेके भी बैठे हो, आप बोलते हो ना एस्केप चाहिए, राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट एस्केप. 2 घंटे के लिए आप बाहर निकले हो, ड्रेसअप अच्छा हो के, यू वेंट आउट, किसी कैफे में जाना है, कॉफी भी ले ली, सबसे बेस्ट आपकी, सबसे फेवरेट, स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन. वेयर इज हियर एंड नाउ. वी जस्ट टीच or re-educate people or our clients to stay in the moment, to how to deal with the moment, how to deal with the situations. Changing a personality is not in anybody's hands. Right. ठीक है. अब एक person को completely आप change कर दो, you can't. Exactly. ठीक है. वो evaluation आती है. अब teenagers, as I told you, उनको लगता है कि हम बड़े logical हैं, हम बड़े ये हैं, ठीक है. ठीक है. They are developing. अब जैसे ये अडल्टहुड में आते हैं, हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं छोटे भाई बहन को या किसी को भी, कि तुम ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो. सो इट्स ऑल डेवलपमेंट. ठीक है. वो डेवलपमेंट से ही हम चेंज होते हैं, हमारी साइकी चेंज होती है, माइंडसेट्स चेंज होते हैं. ठीक है. वो एक पर्सनैलिटी, जो कोर पर्सनैलिटी है ना, वो स्टार्टिंग से वही रहती है. यू आर जॉली पर्सन, ठीक है. वो आपको लाइफ हिट कर दे, कुछ भी, कोई भी सिचुएशंस आ जाए, आप खुशी ढूंढ लोगे कहीं से भी. यू फाइंड हैप्पीनेस आउट ऑफ अ सिंपल, लाइक स्मॉलेस्ट थिंग्स. किसी ने आपको एक फ्लावर दे दिया है, कुछ भी कर दिया, लाइक somebody brought a coffee for you, है ना, किसी ने कुछ भी कर दिया, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, खुशी ढूंढ लोगे. और कुछ लोग हर सिचुएशन को नेगेटिव ही लेंगे. देयर पर्सनालिटी, वो कोर पर्सनालिटी कभी चेंज नहीं होती. हाँ, इफ यू वर्क ऑन इट, अगर पर्सन विलिंग है, एक्सेप्टिंग है, उसको चेंज करना, ये प्रॉब्लम है मेरे में, I have this problem, I want to fix it, I want to change it. They can change anything. Okay. It's both the therapist and their clients part. दोनों को बैठ के ये चीजें प्लान आउट करनी पड़ती है कि क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना. एक्सेप्टेंस पे बातें करते हैं, कमिटमेंट पे बातें करते हैं हम. इट्स नॉट द पर्सनैलिटी जिसको हम पूरा ही चेंज कर दें, मतलब जड़ से उखाड़ के नहीं डाल दें, वो चीजें नहीं होती. तो वी जस्ट चेंज द एस्पेक्ट्स, वो ट्रेड्स हम चेंज करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक करते हैं. राइट. ठीक है. तो एंड बेस्ट एक्सपीरियंस एज अ साइकोलॉजिस्ट, कोई केस आया हो, कोई पर्सन सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब जहां से बहुत मिली हो? ओके. सो टीनेजर्स बहुत आते हैं मेरे पास. सेटिस्फेक्शन मुझे तब होती है कि जब बच्चा पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता, टीचर से बात नहीं कर पाता, फ्रेंड से बात नहीं कर पाता, और वो मेरे पास आता है बात करने के लिए. आई फील द बेस्ट एट दैट टाइम. वो मोस्ट प्रिविलेज्ड पर्सन, blessed person, I would say, कि हाँ, if the person is not finding anyone, but he trusts me as their therapist or as their friend or as anything, है ना, and they come to me, I just that's the most beautiful feeling I ever get, and that's the most beautiful experience of my life. और बहुत बार हुआ है ऐसे, मतलब टीनेजर्स जो हैं, you know, they don't trust anyone, they don't even trust their parents. एक गैप जनरेट होना शुरू हो जाता है. फ्रेंड्स में ट्रस्ट इश्यूज हैं. कई बातें हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है. लाइक दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स इमोशनली आल्सो एंड फिजिकली आल्सो एंड कॉग्निटिवली. हर चीज को, हर एस्पेक्ट को दे आर एक्सप्लोरिंग. एंड व्हेन दे आस्क मी क्वेश्चंस ओपनली, आई फील इट लाइक इट्स वेरी गुड. जस्ट मेड देम कंफर्टेबल और समथिंग. दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट. एंड समटाइम्स कई फ्रेंड्स हैं टिल टुडे, दे कॉल मी एट नाइट, 1 बजे 2 बजे, उठ, बात करनी है, तुझसे करनी है. आई जस्ट feel blessed. At least अच्छे टाइम में कोई याद करे ना करे, they always remember me in their bad times. I get it. Right. तो last question. The choice is not in my hand, but अगर eliminate करना है, first of all you cannot eliminate any of your emotions. Yeah, I know, you just can't. But अगर हाथ में होता, anger, I would say. Anger. Right. Anger. Rage नहीं है मुझ में. It was not from the very start. वो था ही नहीं. Okay. Really that kind of a person जो गुस्सा आता भी तो रोने लग जाता था छोटे टाइम पे, छोटे होते थे. ठीक है. राइट. तो I had anger.
होता है, बबल अप होता है, समटाइम्स बर्स्ट होता है, तो आई वर्कड ऑन इट। काफी नहीं, बहुत कम हुआ है, लाइक ऑन द लोएस्ट पार्ट, बट स्टिल आई वांट टू एलिमिनेट इट, कि गुस्सा ना ही आए तो अच्छा। एंड मेरे इस पे परसेप्शन ये है कि फॉर दैट एंटायर ह्यूमन काइंड एक इमोशन होता है, दैट वुड बी लस्ट। अगर ये ना होती, बहुत चीजें, क्योंकि समटाइम्स यू जस्ट कांट डिफरेंशिएट बिटवीन, जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट फैक्टर तुम्हारे बाकी इमोशंस मर जाते हैं। जो जितने भी मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, जितनी भी लोगों से मैंने बात करी है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो मेरे को लगता है दिस फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड। या सो ट्रू, सो ट्रू। एंड लस्ट इज नॉट ओनली अबाउट one thing or anything, है ना? Yes, it's multiple. Everything. About everything. Greed कह लो, greed, lust कह लो. yeah, That exactly. is the point. And people don't even acknowledge it. Right. And उनको पता ही नहीं है कि what this thing बस is. human emotion है, भगवान जी ने दिया, अच्छा ही दिया होगा. Yeah, they just have this exactly. notion. They just accept it कि हाँ, it's part of my personality, right. but they don't try to change it. Right. or anything, उस पे काम नहीं करते. Yeah, limit. Yeah, you're very right about it. Right. Thank you so much.